ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 25। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् अधिष्ठा प्रभुनां शेन कार्यार्थे संभविष्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। द potency of the Lord, known as Vishnu Maya, who is as good as the Supreme Personality of Godhead, will also appear with Lord Krishna. This potency, acting in different capacities, captivates all the worlds, both material and spiritual. At the request of her master, she will appear with her different potencies in order to execute the work of the Lord. Purport. Parasya Shaktir Vividhiya Shruyate. In the Vedas, it is said that the potencies of the Supreme Personality of Godhead are called by different names, such as Yog Maya and Mahamaya. Ultimately, however, the Lord's potency is one, exactly as electricity potency is one, although it can act both to cool and to heat. The Lord's potency acts in both the spiritual and material worlds. In the spiritual world, the Lord's potency works as Yog Maya, and in the material world, the same potency works as Mahamaya. Exactly as electricity works in both a heater and a cooler. In the material world, this potency working as Mahamaya acts upon the conditioned souls to deprive them more and more of devotional service. It is said, Yaya sammohito jiva atmanam tri gunatmakam. In the material world, the conditioned soul thinks of himself as the product of three guna, the three modes of material nature. This is the bodily conception of life. Because of associating with three gunas of material potency, everyone identifies himself with his body. Someone is thinking he is a Brahmana, someone a Kshatriya, and someone a Vaishya or Shudra. Actually, however, one is neither a Brahmana, a Kshatriya, a Vaishya, nor a Shudra. One is part and parcel of the Supreme Lord, Mamev Ansho. But because of being covered by material energy, Mahamaya, one identifies himself in these different ways. When the conditioned soul becomes liberated, however, he thinks himself an eternal servant of Krishna. Jivere Swarup hai Krishnere Nityadas. When he comes to that position, the same potency acting as Yog Maya increasingly helps him become purified and devote his energy to the service of the Lord. In either case, whether the soul is conditioned or liberated, the Lord is supreme, as stated in Bhagavad Gita, Maya dhakshena prakriti suyate sa characharam. It is by the order of Supreme Personality of Godhead that material energy, Mahamaya, works upon the conditioned souls. Prakritaih kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankar vimudhatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. Within conditioned life, no one has freedom, but because one is bewildered, being subject to the rule of Mahamaya, one foolishly thinks himself independent. Ahankar vimudhatma kartaham iti manyate. But when conditioned soul becomes liberated by executing devotional service, he is given a greater and greater chance to relish a relationship
with the Supreme Personality of Godhead in different transcendental statuses, such as Dasya, Sakhya, Vatsalya, and Madhurya Rasa. Thus, the Lord's potency, Vishnu Maya, has two features, Avarnika and Unmukha. When the Lord appeared, his potency came with him and acted in different ways. She acted as Yog Maya with Yashoda, Devaki, and other intimate relations of the Lord, and she acted in different ways with Kamsa, Salva, and other Asuras. By the order of Lord Krishna, his potency Yog Maya came with him and exhibited different activities according to the time and circumstances. Karyarthe sambhavishyati. Yog Maya acted differently to execute different purposes desired by the Lord, as confirmed in Bhagavad Gita. Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashritaah. The Mahatmas who fully surrender to the lotus feet of the Lord are directed by Yog Maya, whereas the Duratma, those who are devoid of devotional service, are directed by Mahamaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitanscha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Vishnur Maya Bhagavati Yaya Sammohitam Jagat Adishta Prabhu Nam Sena Karyarthe Sambhavishyati. The potency of the Lord, known as Vishnu Maya, who is as good as the Supreme Personality of Godhead, will also appear with Lord Krishna. This potency, acting in different capacities, captivates all the worlds, both material and spiritual. At the request of her master, she will appear with her different potencies in order to execute the work of the Lord. हरे कृष्णा. तो यहाँ इस श्लोक में भगवान के माया के बारे में बताया गया है. यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भगवान का अवतरण होगा, यहाँ जो है ब्रह्मा जी देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं. तो इसी वर्णन करने के संदर्भ में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की माया जो है वो प्रकट होगी. और यह माया कैसी है, तो यथा सम्मोहितम जगत, यह जो है पूरे जगत को सम्मोहित करने वाली है. तो वस्तुतः भगवान की जो माया है, जो विष्णु माया है, इसे पूरा जगत जो है वह सम्मोहित है. और भगवान की जो माया है वो दो प्रकार से कार्य करती है. यहाँ लिखा गया है आवरणिका और उन्मुख. तो भगवान की जो माया शक्ति है, इसे दो प्रकार से इसे बताया गया है. जो आध्यात्मिक संसार में भगवान की माया है वह योग माया है, और जो भौतिक संसार में भगवान की माया है वो महामाया है. तो भगवान की एक ही शक्ति है. जो शक्ति है वह भगवान के कार्य के लिए, भगवान के कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए, भगवान के कार्य के हेतु
वो अलग अलग प्रकार से कार्य करती है, जो भी कि वो भगवान की शक्ति है। और यहाँ यह भी बताया गया कि यह जो है, यह शक्ति, भगवान की जो शक्ति है, यह भगवान के समान ही शक्तिशाली है। यहाँ बता रहे हैं कि विच इज एज गुड एज कृष्णा, भगवान के समान ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो कृष्ण की ही शक्ति है। तो भगवान की यह जो शक्ति है, यह अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। कभी भगवान के भक्तों के लिए या आध्यात्मिक जगत में यह योग माया के रूप में कार्य करती है, और भौतिक जगत में जो भगवान से जो जीव विमुख हो गए हैं उनके लिए वो महामाया का कार्य करती है। तो एक ही शक्ति अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति जो है यह ठंडा करने के लिए भी उपयोग में आता है और गर्म करने के लिए भी उपयोग में आता है। जैसे इसको हम कूलर में अगर विद्युत शक्ति को कूलर में डालते हैं तो वो चीज़ों को ठंडा करता है, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं चीज़ों को ठंडा करता है, और वही शक्ति जब हम हीटर में डालते हैं, गीजर में डालते हैं, तो वह शक्ति जो है वो गर्म करती है, उसका विपरीत प्रभाव है। तो यह जो भगवान की शक्ति है, यह शक्ति भी विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह विष्णु माया जो है यह अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। भगवान की शक्ति है, परंतु अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो योग माया है वह भगवान के भक्तों के ऊपर, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर कार्य करती है। जैसे उदाहरण दिया गया है यशोदा माता का, देवकी माता का। तो जैसे यशोदा माता जो हैं वो भगवान को देखती हैं। जैसे जब भगवान का अवतरण हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, यशोदा जो थी निद्रा में थी, देवकी माता के यहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भगवान अपने योग माया शक्ति से, योग शक्ति से जो है, योग माया जो है उससे देवकी जो है कृष्ण को जो है वो समझी कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनका वात्सल्य प्रेम जागा। और जो थे उस समय जो सभी जो लोग थे सभी सो गए, और देवकी वसुदेव जो हैं वो भगवान की माया के प्रभाव में थे, और जैसे भगवान ने कहा उस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार वो गोकुल महावन में गए, और वहाँ पर यशोदा माता जो थी, जो योग माया शक्ति से निद्रा में थी, वहाँ पर भगवान को वहाँ पर एक्सचेंज कर दिया गया। तो यह जो शक्ति है, जो भगवान के भक्तों के ऊपर जो शक्ति कार्य करती है, यह शक्ति जो है यह योग माया शक्ति है, यह भगवान की योग माया शक्ति है। क्योंकि जो योग माया शक्ति है वह जो है भगवान के भक्तों के ऊपर कार्य करती है। दूसरा उदाहरण है कि जब जो गोपियां हैं वो अपने घर में विभिन्न कार्यों में लगी हुई थी, सेवा कर रही थी, और उस समय भगवान ने जब शरद पूर्णिमा के रात्रि में जब भगवान ने अपने वंशी को बजाया, तो भगवान की वंशी को सुनकर गोपियां जो थी अपनी सेवा को छोड़कर वो भगवान की तरफ दौड़ी, क्योंकि भगवान से वो इतनी आसक्त थी, भगवान से उनके इतना उनका आकर्षण था कि वो सभी चीज़ों को त्याग कर भगवान की तरफ तेजी से दौड़ी। तो उस समय जो उनके जो मदर इन लॉ हैं, जो उनके सास हैं, उनके पति हैं, उन्होंने उनको रोका नहीं। तो जो भी कि वो अपनी सेवा को छोड़कर भगवान की तरफ गई थी, जा रही थी, दौड़ रही थी, तो उनके जो सासू माँ हैं या उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनको रोका नहीं, क्योंकि वो सभी योग माया के प्रभाव में थे। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रज में जितने भी लोग हैं सभी भगवान के भक्त हैं। जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ के जो परिवार हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, वो सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो भगवान के योग माया के प्रभाव में हैं। और गोपियों का जो प्रेम है वह जो है वो प्रेम के वशीभूत होकर योग माया के प्रभाव में वो भगवान की तरफ वो दौड़ती हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये सारे जो उदाहरण हैं जो भक्तों के ऊपर जो कार्य करता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर यह जो शक्ति कार्य करती है, यह योग माया शक्ति है। और इसे यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये उन्मुख शक्ति है। उन्मुख शक्ति अर्थात यह जीव को भगवान की तरफ लेकर जाती है।
जीव जो है जो बद्ध जीव है या जो एक साधक भक्त है, जो जिसे उन्मुख शक्ति जो है और जीव को भगवान की तरफ अग्रसित करती है, भगवान की तरफ प्रेरित करती है भगवान की तरफ जाने के लिए। और भगवान की जो दूसरी शक्ति है जिसे आवर्णिका शक्ति कहा गया है, यह आवर्णिका शक्ति से संपूर्ण जगत जो है वह मोहित है। यहां जैसे बताया गया है, मोहितम यया सम्मोहितम जगत, तो ये पूरा संसार जो है वह भगवान की महामाया शक्ति से वो विमोहित है। और इस प्रकार से भगवान की महामाया शक्ति से जो जीव विमोहित है, यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसको जीव को पार कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह कृष्ण के समान ही यह शक्तिशाली है। हम देखते हैं कृष्ण को कोई परास्त नहीं कर सकता है। भगवान को कोई भी युद्ध में, भगवान जो है अजित हैं, भगवान को कभी भी कोई परास्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है वह कृष्ण के समान ही शक्तिशाली है। तो कृष्ण के समान शक्तिशाली होने के कारण कोई भी व्यक्ति उसे परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान की जो शक्ति है, इसे पार कर पाना भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान की कृपा यदि किसी जीव को प्राप्त हो तो भगवान की कृपा से वह भगवान की इस दैवी शक्ति जो है, महामाया शक्ति है, इसको जीव पार कर सकता है, अन्यथा नहीं। और यह जो महामाया का प्रभाव कैसे होता है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव जो है महामाया की प्रभाव में आकर, उससे भगवान की माया शक्ति से विमोहित होकर वह स्वयं को वो अपना शरीर समझते हैं। देहात्म बुद्धि उनके अंदर उत्पन्न होती है, और देहात्म बुद्धि उनके अंदर उत्पन्न होती है तो वो समझने लगते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाने जाति का हूँ, मैं फलाने देश का हूँ, मैं फलाने वर्ण का हूँ। और इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र समझता है, कोई अपने आप को भारतीय समझता है, कोई पाकिस्तानी समझता है, कोई अपने आप को हिंदू समझता है, कोई अपने आप को मुसलमान समझता है, ईसाई समझता है। तो ये सारे जो डेजिग्नेशंस हैं, ये सारा जो परिचय है, यह माया शक्ति के प्रभाव में हो रहा है। जब जीव भगवान की माया शक्ति से विमोहित होता है तो वह स्वयं को अलग अलग प्रकार से इस संसार में स्वयं को परिचय करता है, स्वयं को वो चिन्हित करता है। वो समझता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। परंतु जीव यह नहीं जानता है कि वह कृष्ण का अंश है। इन सभी परिचयों से उसका वास्तविक स्थान जो है, उसका जो संवैधानिक स्थान है, वह इससे परे है। मामय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जीव जो है वह वस्तुतः भगवान का अंश है, और भगवान के अंश होने के कारण वह कृष्ण के समान ही जो है वह आनंद से भरा हुआ है, उसे ज्ञान है, और वह जन्म मृत्यु से परे है, उसका चिर स्थायित्व है। परंतु यह भगवान के माया शक्ति के प्रभाव में वह जो है स्वयं को वो शरीर समझता है, और इस प्रकार वह निरंतर इस संसार में परिवर्तन करता रहता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जैसे जैसे संसार का उद्भव होता है, प्रलय होता है, उसी प्रकार जीव जो है वह नाना प्रकार की योनियों में प्रकट होता है। उसके बाद उसका शरीर विनष्ट होता है, फिर दूसरे योनि में प्रकट होता है, और इस प्रकार से वह 84 लाख योनियों में वो जीव जो है वो भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जीव है वह वास्तव में, यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन ईदर केस वेदर द सोल इज कंडीशन्ड और लिबरेटेड, द लॉर्ड इज सुप्रीम एज स्टेटेड भगवान मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो भगवान जो हैं वो परे हैं, भगवान जो हैं माया शक्ति से परे हैं, और जीव या मुक्त हो या वो बाध्य हो, वह भगवान की शक्ति के अधीन रहता है। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है। भगवान जो है दोनों के स्वामी हैं। भगवान योग माया के स्वामी हैं, महामाया के भी स्वामी हैं। तो जीव या तो योग माया के प्रभाव में रहता है या फिर वो महामाया के प्रभाव में रहता है। वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि जीव की संवैधानिक स्थिति जो है वह
स्वतंत्र नहीं है। जीव का वास्तविक स्थान जो है वह स्वतंत्र नहीं है। जीव ही भगवान की शक्ति है। जिस प्रकार भगवान की ये शक्ति जो है योग माया, महामाया शक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है, उसी प्रकार जीव भी कृष्ण के ऊपर आश्रित है। परंतु जो जीव हैं वो महामाया के प्रभाव में विमोहित होकर यह समझते हैं कि वो स्वतंत्र हैं। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो जब भगवान के यह जो अवर्णिका शक्ति है उसके ऊपर कार्य करती है, तो उसकी बुद्धि जो है, उसका जो ज्ञान है वह आवृत्त हो जाता है, और उसका ज्ञान आवृत्त होने के कारण वह शरीर से स्वयं का बोध करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। वह स्वयं को इस प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ उत्पाद समझता है। वो समझता है कि मैं ये प्रकृति जो है यही मेरा सब कुछ है, और ये जो मेरा घर है, मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा नौकरी चाकरी, मेरा बैंक वाले, यही मेरे जीवन के लिए यही सर्वस्व है। तो यह इस प्रकार की जीव की जो दशा है, या हम उसे कहेंगे दुर्दशा, यह जो है माया के प्रभाव में आता है। वस्तुतः जीव जो है वह इन सबों से परे है, परंतु वह माया के प्रभाव में, भगवान के जो दैवी माया है उसके प्रभाव में आवृत्त होकर, उसका ज्ञान आवृत्त होकर वह स्वयं की अपनी संवैधानिक स्थिति को, अपनी वास्तविक स्थिति को वो समझ नहीं पाता है। तो जीव जो है जब अपनी संवैधानिक स्थिति को नहीं समझ पाता है, परंतु उस समय भी वो निरंतर यही प्रयास करता रहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और क्योंकि उसका वास्तविक जो स्वभाव है वह सुख आनंदमयो अभ्यासात, तो वो अपने वास्तविक स्थान में वो स्थित होने का प्रयास करता है, परंतु उसका जो प्रयास है उसे निरंतर विफल करता है, क्योंकि उसका प्रयास जो है यह भगवान के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। भगवान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश जो हैं उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए वो उसके प्रयास जो हैं वो निरंतर विफल होते हैं। जैसे उदाहरणतया इस संसार में जितने भी जीव, या विशेषकर जो मनुष्य हैं, क्योंकि जो दूसरे जीव हैं वो अपने प्रकृति के अनुसार से वो प्रेरित रहते हैं। प्रकृति उनको जिस आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जो प्रकृति ने उसको निर्देशित कर दिया है, तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार वो आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं। परंतु जो मनुष्य है उसमें भगवान ने विवेक दिया है, और उसे एक मार्ग दिया गया है। विवेक देने के कारण, ज्ञान के कारण मार्ग दिया गया है कि वह इस बंधन से मुक्त होकर भगवान की तरफ जा सके। तो इसलिए मनुष्य को यह विवेक दिया गया है, और मनुष्य का यह कार्य है कि वह इसे जानकर, इसे समझकर भगवान के दिशा निर्देश को अपने जीवन में उतार कर वो भगवान की तरफ अग्रसित हो। वो अपने जीवन को इस प्रकार से भगवान की तरफ अग्रसित करके वो अपने जीवन को सफल करे, अपने जीवन के मनुष्य के जन्म के ध्येय को वो प्राप्त करे। परंतु वह जो प्रयास करता है सुखी होने का, चूंकि उसका स्वभाव है निरंतर सुख होना, तो उसका जो है स्वभाव सुख होने का जो प्रयास है उसे वह निरंतर विफल होता है। अब जितने भी मनुष्य जाति हैं यहाँ आज के समय में, जो भी जितने भी मनुष्य हैं, तो ऐसा है कि ये मनुष्य जो हैं, ऐसा नहीं कि अभी इनका जन्म हुआ है, और इससे पहले भी आत्मा जो है वो तो सनातन है। ये 84 लाख योनियों को पार करके अभी मनुष्य जन्म में आए हैं, और इससे पहले भी कितने देवता बने होंगे, कितनी बार पहले भी मनुष्य बने होंगे ना। उनका इतिहास जो है कितना पुरातन है, और प्रत्येक जन्म में वो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो निरंतर असफल हुए हैं, वो अपने प्रयास में विफल हुए हैं। परंतु अब भी इस जन्म में भी वो उसी प्रकार से और सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो है कितना विडंबना है कि यह इतने जन्मों में सुखी होने का प्रयास करने के से विफल होने के पश्चात भी वो आज भी वो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको यह इस बात का भरोसा होता है, इस बात को उनको निष्ठा होती है कि हाँ, मैं अपने प्रयास से एक दिन सुखी हो जाऊंगा। तो यह जो भगवान की माया कितनी विकराल, भगवान की माया कितनी प्रबल है कि जीव 84 लाख योनियों में उन्हीं कार्य को करके सुखी होने का प्रयास कर चुका है, विफल हो चुका है, कितनी बार विफल हो चुका है,
परंतु भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वह जीव को वो आशा दिलाते रहती है, वह आशा दिलाती है, हाँ आप प्रयास जारी रखो, प्रयास करते रहो, एक दिन तुम सुखी हो जाओगे। तो जीव जो है उसको निरंतर कितना जन्म मृत्यु जरा व्याधि आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक इतने उसे लात पड़ रहे हैं, उसे इतने लात खाने पड़ रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इतने जन्मों को वो जी चुका है और इतने जन्मों में सुखी रहने के सुखी बनने के प्रयास में वो विफल हो चुका है। परंतु भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वह इस जन्म में भी उसके ज्ञान आवृत्त होने के कारण वह फिर से वो सुखी होने का प्रयास करता है। श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे गाय का गोबर होता है, तो गाय का गोबर जो है वो जब गीला रहता है तो उसका दूसरा उपयोग होता है और जब सूखता है तो उसका दूसरा उपयोग होता है। तो जैसे घरों में क्या होता है कि गांव में विशेषकर जो गाय का गोबर है उससे कंडे बनाते हैं और जब सूख जाता है तो जब सूख जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको अग्नि में हम जलाते हैं, उससे हम भोजन बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो गीला गोबर है वो सूखा गोबर को देखता है और वो हंसता है कि देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, तुम जल रहे हो। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जो थोड़े समय के बाद ये भी सूख जाएगा और जो है उसकी भी दशा वही होगी, उसे भी अग्नि में डाल दिया जाएगा। तो वो यह सम्मोहित है, जो जीव है इस प्रकार से वह जो है सम्मोहित है। वो देख रहा है कि संसार में जो लोग हैं वो इतने कष्ट में हैं, परंतु उसे ज्ञान नहीं होता है कि वो एक रास्ता है जिससे कि वो उस रास्ते से, इस कष्ट से वो मुक्त हो सकेगा। हम उदाहरणतः देखते हैं कि जो विशेषकर जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कार्य करते हैं। तो हॉस्पिटल में उनका तो इतना सारा समय मरीजों के बीच में जाता है। वो देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कि लोग जो हैं वो व्याधि से, रोग से पीड़ित हैं। किसी का पैर कटा हुआ है और कोई जो है कोमा में पड़ा हुआ है, कोई बुखार में तप रहा है, किसी का लीवर फेल हो गया है, किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी को लकवा आ गया है, हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं। और इस प्रकार के नाना प्रकार की व्याधियों के बीच में वो निवास करता है, निरंतर रोज दिन प्रतिदिन वो देखता है। परंतु उसे यह आभास नहीं होता है कि मेरी भी दशा एक दिन ऐसी होगी, मुझे भी एक दिन देह को त्यागना पड़ेगा। या उसे यह इसे ध्यान में नहीं आता है कि संसार में कितना दुख है और मेरे जीवन में भी ऐसा दुख आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और मुझे इस जीवन को त्यागना पड़ सकता है, मुझे भी व्याधि हो सकती है। इस बात की उसे अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि यह भगवान की माया शक्ति है। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह जीव को इतना विमोहित कर देती है कि वह देख कर भी देख नहीं सकता। पश्यन अपि न पश्यति, प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो देख कर भी वो देख नहीं पाता है। पुनः पुनः शर्वता शरणाम, वो आनंद के प्रयास में वो निरंतर वो संघर्ष करता रहता है, परंतु माया शक्ति उसे इस बात को दिलासा दिला देती है कि हाँ तुम प्रयासरत रहो, सुखी हो जाओगे। जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तब तुम सुखी हो जाओगे। और इस प्रकार जीव जो है वह निरंतर उस आशा में निराशा का जीवन व्यतीत करता है और अंततः उसे इस देह को त्यागना पड़ता है, जो भी कि उसकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि माया ने उसे निरंतर यह दिलासा दिलाया है कि तुम सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो वह उसी आशा में वो निरंतर प्रयत्न करता रहता है, घोर संघर्ष करता रहता है। संघर्ष करते 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 एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु आती है तो वह प्रतीक्षा नहीं करती है। कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी धनवान हो, परंतु जब मृत्यु जीव को के समक्ष आती है तो उसे वह जीव जो है एक सेकंड भी वह आगे पीछे नहीं कर सकता है। वह अपनी मृत्यु को एक सेकंड भी पोस्टपोन नहीं कर सकता है। वो नहीं कह सकता है कि मृत्यु को कि आप रुकिए, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, अभी मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है फाइनल नहीं हुआ है,
तो इन सब प्रोजेक्टों को मैं फाइनल करके आपके पास आऊँगा। तो मृत्यु को वो नहीं कह सकता, क्योंकि जो यह मृत्यु है यह भगवान की शक्ति है। मृत्यु सर्व हरश्याहम, और मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ हर लेते हैं। तो जीव को इसका आभास हो चुका है, जीव की को 84 लाख योनियों में इसकी अनुभूति हुई है। प्रत्येक जीव को इस प्रकार की अनुभूति हुई है, और इस जीवन में भी वह संसार में देख रहा है कि उसके जो परदादा हैं, दादा हैं, वो नहीं रहे, उसके पिता नहीं रहे, उसके सगे संबंधी नहीं रहे, और अंततः उसका भी यही परिणाम होने वाला है। परंतु वो उसके बुद्धि में यह जो विवेक है यह जागृत नहीं होता है। वो सोचता है कि शायद मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। ऐसे कि युधिष्ठिर महाराज, यक्ष युधिष्ठिर वात्रा में कहा गया है, कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषस्तावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। संसार का कितना बड़ा आश्चर्य है, परम आश्चर्य, इतना बड़ा आश्चर्य है कि वो जीव प्रत्येक दिन देख रहा है कि जो जीव हैं वह यमलोक को सिधार रहे हैं, यमलोक को जा रहे हैं, परंतु शेषस्थावर इच्छन्ति, जो लोग हैं वह इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन मेरा भी यही परिणाम होने वाला है, मेरी गति होने वाली है। और इस प्रकार इस बात को जानकर, इस बात की अनुभूति करके वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्थान की प्रगति का मार्ग को, सन्मार्ग को वो नहीं चुनते हैं, परंतु माया के द्वारा दिए गए आशा से बद्ध होकर वो निरंतर सुखी रहने का प्रयास करते हैं। भगवान की जो माया शक्ति इतनी प्रबल है, शंकराचार्य श्लोक में लिखते हैं कि अंगम गलितम गलितम मुंडम दशन विहीने जातु टुंडम। वो बताते हैं, श्लोक मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है कि अंगम गलितम, वो देख रहा है कि उसका शरीर जो है वो गल रहा है धीरे धीरे। जैसे वृद्धावस्था आती है तो वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम, जब वृद्धावस्था आती है तो क्या होता है, अंग गलने लगता है, शरीर के बाल जो हैं निकल जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। और दशन विहीने जातु तुंडम, ये जो मुख के दांत हैं, सभी जो मुख जो हैं वो दशन विहीन है, दांतों से विहीन हो जाते हैं। और वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम, जैसे वृद्धावस्था आती है तो पहले व्यक्ति 2 पाद का होता है, परंतु जैसे वृद्धावस्था आती है वो 3 पाद का हो जाता है, उसका एक पांव और जुड़ जाता है, वो उसकी लाठी, तो उसकी लाठी एक जुड़ जाती है। तो वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, परंतु जीव की आशा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है। जीव की आशा जो है वो निरंतर बरकरार रहती है। तो जीव यही सोचता है कि हाँ शायद अभी थोड़े समय में मैं सुखी हो जाऊंगा, बस इतना हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। तो यह जो है यह भगवान की माया शक्ति है। भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि वह जीवों को ऐसे जेल में बांध के रखती है जिस जेल की दीवारें दिखाई नहीं पड़ती है, जिस जेल की दीवारें जो हैं वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बना हुआ है। और जीव जो है बड़े ही आराम से, बड़े ही स्वेच्छा से उसमें निवास करने का चेष्टा करता है। यह कितना अद्भुत है। जैसे यदि हम किसी जीव को यदि हम मारने का प्रयास करेंगे तो जीव अपने चंगुल से वो भागने का प्रयास करता है, वो यत्न करता है कि वो छूटकर और स्वतंत्र हो जाए, वो वहां से भाग जाए। परंतु ये जो माया का जो संसार है, भगवान की जो शक्ति माया शक्ति है इतनी प्रबल है कि जीव जो है इस संसार से विमुक्त होने का प्रयास नहीं करता है। और इतने कष्ट पाने के बाद और इतनी बार वह इस संसार में सुख पाने की असफलता को प्राप्त करने के उपरांत भी वह आशाबद्ध रहता है कि एक दिन मैं कभी सुखी हो जाऊंगा। और यह जो है यह भगवान की शक्ति है। और यह जो विष्णु शक्ति है यह इतना शक्तिशाली है क्योंकि जीव के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि इससे वो परे जा सके। हम देखते हैं कि भगवान की ऐसी शक्ति है कि भगवान की शक्ति से स्वयं की भगवान की शक्ति के कारण वह जीव जो है कितना भी शक्तिशाली हो वह भगवान की माया शक्ति को पार नहीं कर पाता है। हम बहुत सारे उदाहरणों में देखते हैं, जैसे कि विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है कि वो 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी और उनका इतना तप बल था कि वो गर्मी में जाकर मरुस्थल में, मरुभूमि में वो
बैठते थे और अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और मरुभूमि में बैठते थे और तपस्या करते थे। और ठंडे के समय में वो हिमालय में जाते थे, गंगोत्री में जाते थे और वहां पर हिमालय में बर्फ के अंदर बैठकर, गले तक बर्फ के नीचे बैठकर और वो तपस्या करते थे। इतनी उनकी प्रबल तपस्या थी, कितना उनको अपने मन और इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल था, कितना नियंत्रण था उनके मन और इंद्रियों के ऊपर। परंतु जैसे ही जब मेनका आई तो मेनका के जो पांव हैं, जो चरण हैं, उसमें जो उसके जो पायल हैं, घुंघरू हैं, वो उसी के मधुर आवाज से उनका जो तप था वो उसमें विघ्न आ जाता है, टूट जाता है और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कौन है और वो मेनका से इतने विमोहित होकर उसके साथ रहने लगते हैं और इतने वर्षों तक रहते हैं, इतने 100 सैकड़ों हजार वर्ष बीत जाते हैं और वो अपनी तपस्या साधना सबको भूल जाते हैं। और उसके बाद उनको ज्ञान आता कि मैं क्या कर रहा हूं। उनसे, मेनका से वो शकुंतला का जन्म होता है और उन्होंने तब उनको ध्यान में आता है, अरे मैंने तो इतने वर्षों तक मैंने गायत्री भी नहीं किया, मेरा तप कहाँ गया। तो यह जो है, यह भगवान की माया है। भगवान की जो माया है, विष्णु माया है, वो कितनी प्रबल है कि जीव को वो विमोहित कर देती है। इसलिए यह जीव के बस में नहीं है कि वो भगवान की माया को पार कर सके। एक ही मार्ग है, जब भगवान को समर्पित होता है तो भगवान की कृपा से ही वह इस माया को पार कर पाता है। जिससे भगवान कहते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो भगवान का शरणागत हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है, वही इस भगवान की माया से वह विमुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए इस संसार में भक्ति ही एक मार्ग है जो जीव के लिए परम कल्याणकारी है और भक्ति ही वस्तुतः एक मार्ग है जो जीव को इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से जो संसार है इससे मुक्त कराता है और भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्रदान कराता है और जीव को भक्ति जो है उसके वास्तविक, उसके संवैधानिक स्थान को प्राप्त कराती है। तो यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।